हेलो। 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 आइए बैठिए। ऐसा है कि मुझे बताया गया कि बिहार पीसीएसजे का इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के लिए मनोज सर ने स्पेशल सॉरी, इंटरव्यू के लिए उन्होंने शायद स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज किया था। मुझे उन्होंने बुलाया कि आज पहला दिन है, आप एक मोटिवेशनल क्लास विद्यार्थियों का लीजिए और ये बताइए कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे अपियर हुआ जाता है, क्या तरीका होता है, इंटरव्यू कैसे हम फेस करेंगे। तो इन सबों के बारे में एक इंट्रोडक्टरी चर्चा के लिए उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया कि आप आएं और एक मोटिवेशनल क्लास विद्यार्थियों का लें। ऐसा है कि इंटरव्यू आपका तब होता है व्हेन यू क्वालिफाई मेंस एग्जामिनेशन, and interview is the last stage of the selection process. After interview, your final result is prepared and declared. Interview, I think, carries 100 marks. Interview carries 100 marks. And what happens in interview? In interview, your merit is not checked. Listen what I am saying. In interview, your merit is not checked. Merit has already been checked in pre-examination as well as in mains examination. Your merits have been checked. What has to be checked in interview is your personality. Interview means personality test. Your personality has to be checked. What kind of a personality you have? This is checked in interview. So in interview, your appearance and your experience and your expressions have to be checked. In total, what kind of a personality you have, that is checked in interview. Your appearance is checked, your expression is checked, how you listen to the interview board, that is checked, how you respond, that is checked, how you face them, that is checked. So all about your personality is checked in. So what I said that merit is not very much checked in interview. What is checked is your personality. So you have to show your personality there in interview, and you have to satisfy the interview with your personality. Your personality should be appealing. Your personality should be impressive.
Your personality should be such that you can impress the interview board, and you produce yourself in such a way, you introduce yourself in such a way that they get impressed by your appearance, by your posture, by your body language, by your response. So, this all has to be checked in. Now, interview carries 100 marks, you know. Generally, what happens is 40% marks is generally, what is the concept that I am telling you? If 40% marks is given to all who appear in the interview. If you appear in the interview, it means if everything remains the same, then you are entitled to get 40%. Yes, this is what I am telling you. In Bihar, yes. So if you appear there in interview and everything remains the same, everything is right, nothing wrong, your appearance enables you to get 40%. Maximum marks allotted is 80%. Maximum marks allotted is 80%. It means between 40 to 80 fluctuation is there. Between 40 to 80 fluctuation is there. If you perform very well, if you satisfy the board, if you convince the board, if the board is fully satisfied with your performance, under that situation, you may get maximum 80% marks. If you have performed so well, okay, then you may get 80%. That is the maximum. And 40% is minimum. And between these two limits, marks fluctuate. Now, if you appear in the interview, neither your appearance is good, nor your response is good, nor your performance is good, nothing is good on your part. In that case, you may get less than 40% mark. Only appearance does not enable you to get 40% marks. Your only appearance is not sufficient. Your appearance should be such that it can impress the board, and then you can get 40%. Now the question is, how should be our appearance? How should be our appearance? Now, first of all, you have to be well dressed. There is a dress code of interview. You know, there is a dress code, and all those who are going to face interview are supposed to be in well dress. You know,
suit, tie, or whatever the girls wear, है ना? That is, but you should be well. First condition is that your attire should be appealing. Appealing in the sense well dressed. Thereafter, what happens in interview? Your reported time will be half or 1 hour before the interview starts. Suppose interview
हेलो, होता क्या है कि आप निगेटिव सोचने लगते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छा नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बोर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लास्ट स्टेज में जाकर बाहर हो जाएंगे। नथिंग टू थिंक अबाउट ऑल दिस, नथिंग टू थिंक अबाउट। जो होगा सो अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी असर्टिव, बी कॉन्फिडेंट, सब अच्छा होगा। अब तक अच्छा हुआ तभी तो आप यहां तक पहुंचे भाई। आप प्रीलिम्स दिया, अच्छा हुआ तभी तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। आपने मेंस दिया, मेंस भी जगह बनाया तभी तो इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचे। तो व्हाई टू थिंक नेगेटिव, क्या होगा, अब तक सब अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा होगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन, ही विल डू एवरीथिंग राइट। You have to do your best, he will do the rest. Listen what I said. You have to do your best. अब how to do best? देखिए होता क्या है कि आप जब निगेटिव सोचते हो तो आप में नर्वसनेस आता है। नर्वसनेस का मतलब कि नॉर्मलसी का खत्म हो जाना। नर्वसनेस मीन्स व्हाट, यू लूज नॉर्मलसी। और जब नॉर्मलसी समाप्त हो जाती है तो आप का मानसिक संतुलन हिल जाता है, वो बना नहीं रहता। और ऐसे में आप सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते, आप सही ढंग से नहीं जवाब दे पाते हो। आप ऐसे सवाल का भी जवाब नहीं दे पाते जो आपको आ रहा है, आप उसका भी जवाब। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपने पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, सब ठीक होगा। और नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड। ऐसा है क्या, सब कुछ आपके हाथ में तो नहीं है। कुछ चीजें बियॉन्ड योर कंट्रोल, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों करना। और चिंता करके ही क्या होगा, वो कंट्रोल में तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है नहीं। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि एक्सेप्ट द वर्स, वर्स को स्वीकार कर लीजिए। कभी कभी ये कहा जाता है लोग कि वर्स को स्वीकार कर लीजिए। अरे बहुत होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लाइफ खत्म थोड़ी हो जाएगा। अरे बहुत होगा तो नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप। और जब आप सोचने लगते हो अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो कि नहीं होगा, कहीं नहीं होगा तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब ये सब जो आप सोचने लगते हो ना, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आराम से बोर्ड में अप्लाई। अब बोर्ड में 3 या 4 लोग होते हैं। आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जिधर से सवाल आए और जिस भाषा में सवाल आए, अगर सपोज कि बगल से इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि यू जस्ट रिप्लाई हिम इन इंग्लिश। जैसे आपने बोर्ड देखा है कभी, इंटरव्यू का बोर्ड नहीं देखा है, देखा है, अच्छा आपने देखा है। आप लोग अब देख लीजिएगा, कहां देखा है, हाँ? अच्छा वीडियो में देखा है, हाँ। तो अब जा रही है ना, तो अब देखिएगा, रियल में देखिएगा। तो वो इस तरह का
है ना, शेप में, अंडाकार शेप में वो होता है बना हुआ। सामने चेयर पर्सन बैठते हैं, एक एक्सपर्ट इधर बैठेंगे, एक एक्सपर्ट इधर बैठेंगे, अगर 3 से ज्यादा हैं तो एक एक्सपर्ट इधर बैठेंगे, 4 एक्सपर्ट। अगर इधर से सवाल आ रहा है तो आप इधर मुखातिब होइएगा और इनको जवाब दीजिएगा। इधर से सवाल आ रहा है तो आप इधर मुखातिब होंगे, इनको जवाब देंगे। अगर इंग्लिश में सवाल आ रहा है तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, अगर आप जानते हो तो। माना तो ये जाता है कि इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इंग्लिश यू जस्ट रिप्लाई इन इंग्लिश, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन हिंदी यू रिप्लाई इन हिंदी। यही दो भाषा में तो है। लेकिन सपोज कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन इंग्लिश, तो यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। अगर आपने उनका क्वेश्चन समझ लिया है देन इट्स ओके, आप हिंदी में जवाब दे दीजिए। जवाब आपने सही दिया कि नहीं दिया दैट मैटर्स, लैंग्वेज डजंट मैटर। अगर आपने उनका सवाल नहीं समझा कि उन्होंने क्या पूछा, तो आप उनसे सॉरी करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना प्रश्न जो है वो फिर हिंदी में आप पूछें तो मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगा। तो तुरंत वो आपसे हिंदी में सवाल पूछेंगे और फिर आप उनको हिंदी में जवाब दीजिए। जो सवाल आए उसका जवाब दीजिए, जो सवाल आप नहीं जानते हो आप सॉरी कह दीजिए। आप उस पर गेस नहीं, आप गेस नहीं कीजिए। कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, हालांकि जुडिशियरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सामान्य इंटरव्यू में, कमीशन वगैरह का जो सामान्य इंटरव्यू होता है उसमें कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है जो डिस्प्यूटेड होता है, जो डिस्प्यूटेड होता है। तो आपको ऐसे सवाल का जवाब बहुत ही बैलेंस्ड वे में, संतुलित तरीके से देना है। जैसे एक बार इंटरव्यू में पूछ दिया, ये बताइए कि भारत में, बिहार की ही बात मैं कर रहा हूं, बिहार में ही एक बार पीसीएस में इंटरव्यू पे पूछ दिया कि बताइए भारत में कम्युनिस्ट का क्या भविष्य है। बिहार पीसीएसजे में वंस आस्क्ड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कम्युनिस्ट इन इंडिया। तो जो विद्यार्थी इंटरव्यू दे रहा था वो कम्युनिस्ट को पसंद नहीं करता था, वो धुर विरोधी था कम्युनिस्ट। तो उसने बेबाक जवाब दिया कि सर कम्युनिस्ट का भविष्य और भारत में पहले था क्या जो अब रहेगा। ये उसने कहा, बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, सर भारत में तो कम्युनिस्ट का भविष्य कभी नहीं था, और अब जब दुनिया में सभी जगह कम्युनिस्ट धराशायी हो रहा है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो विघटित हो रहे थे, तो अब जब दुनिया में दूसरे तीसरे मुल्कों में कम्युनिस्ट का समापन हो रहा है, तो अपने देश में कम्युनिस्ट का क्या भविष्य है। मुझे तो कोई भविष्य नहीं दिखता। अब आपने स्पष्ट रूप से ये जवाब दे दिया। सपोज कि अगर बोर्ड में कोई कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी बैठा हो तो ये जवाब उसको संतुष्ट नहीं करेगा, और आपसे अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि इस तरह का जवाब ऐसे क्वेश्चन में आप दें। तो आपको एक बैलेंसिंग जवाब देना चाहिए, बैलेंसिंग जवाब देना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन में कोई डिस्प्यूट है, तो आप बिल्कुल सजग हो जाइए और बहुत ही शालीनता से
आप उसका जवाब देकर ऐसा जवाब दीजिए कि हम जवाब भी दे दें और कहीं से कोई संकेत भी ना जाने पाए कि हम किस सोच के और किस विचारधारा के आदमी हैं। 20 से 25 मिनट तक का इंटरव्यू होता है और इसी में आपका परफॉर्मेंस चेक होता है, इसी में आपका परफॉर्मेंस चेक होता है। मैं फिर कहता हूं कि आपसे मुश्किल से 7, 8, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें आपको अगर आप 8-10 में से 6-7 क्वेश्चन का भी जवाब आप संतोषजनक रूप में दे देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने परफॉर्म बेहतर किया है, आपने बेहतर परफॉर्म किया है। जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन का न्यूज आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जिस दिन द डे यू आर गोइंग टू फेस इंटरव्यू यू मस्ट अपडेट योरसेल्फ कि उस दिन की गतिविधि क्या है। कभी कभी बोर्ड में ये पूछ दिया जाता है आपके सामान्य, क्योंकि देखिए ये पर्सनालिटी टेस्ट है। मैं फिर कहता हूं मेरिट की टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, टेस्ट क्या है आपकी पर्सनालिटी। तो कभी कभी आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि ये बताइए कि आज का हेडलाइंस क्या है, आज का हेडलाइंस क्या है। तो आपको जिस दिन आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए उस दिन का पेपर और पेपर का हेडलाइंस देख लीजिए, पेपर का हेडलाइंस वगैरह देख लीजिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पर सवाल होगा तो आप रिजर्वेशन को इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि रिजर्वेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रिजर्वेशन इज ए कॉन्स्ट। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजर्वेशन को भाई पहले भी अपहेल्ड किया है, लेकिन अभी अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट आया, आप लोगों ने पढ़ा, देखा, नहीं देखा? नहीं देखा आप लोगों ने? क्यों नहीं देखा? अभी एक सप्ताह पहले रिजर्वेशन पर ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट आया, नीट वगैरह में, नीट के संदर्भ में आया और सारे पेपर का हेडलाइंस बना, सारे पेपर की सुर्खियां बनी। तो ये सब की जानकारी रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल में उन सब की जानकारी रखिएगा। इधर हाल फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुए हैं, मेरे समझ से कई जजमेंट्स हुए होंगे। एक जजमेंट कुछ एक पदोन्नति के बारे में हुआ है, एक रिजर्वेशन के बारे में हुआ है, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में हुआ है। अभी अभी आप देखिएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में भी हुआ है कि हैंगिंग के जगह पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर विकल्प या लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर फोकस किया जाए। उसके संदर्भ में एक जजमेंट मैं तो कभी कभी देखता रहता हूं, तो ये सारे जजमेंट्स आए हैं। इन सब जजमेंट्स को, सब जजमेंट्स को आप उसको देखिएगा जरा सा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुए हैं वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। प्लस जैसे पटना हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सॉरी पटना बिहार में देने जा रहे हैं, तो पटना हाई कोर्ट के बारे में सारी जानकारी रखिएगा। पटना हाई, एक मोटा मोटी पटना हाई कोर्ट में स्ट्रेंथ क्या है जजेस की,
चीफ जस्टिस कौन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में, फिर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, मतलब पटना हाई कोर्ट के बारे में जो जानकारी है वो सारी जानकारी आप रखिएगा। उसके बाद रीटों के संदर्भ में जो बेसिक जानकारी है वो सब चीज़ों की जानकारी रखिएगा, किस किस तरह के रीट होते हैं, है ना, और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, किसी तथ्य के बारे में, रीट कौन कौन से होते हैं, इन सबों की जानकारी रखिएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि इन सब चीजों की जानकारी आप रखें। आप हाई कोर्ट में रीट करते हो तो क्यों जाते हो रीट में, वाई डू यू फाइल रीट, you file a writ in the high court, why you filed it, why, in what circumstances you go, yes, when you feel that fundamental right, your fundamental right has been violated, when you feel that fundamental right has been violated, in that case you file petition, यू फाइल रिट पिटिशन, और आप लिखते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, मेरे साथ जस्टिस किया जाए, मुझे न्याय दिया जाए। आप जब रिट करते हो तो दिखाते हो उसमें। अच्छा, किस प्रावधान के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दाखिल करते हो, 900, हाँ, और किस प्रावधान के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हो, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। स्पेशल रिट पिटीशन क्या होता है, स्पेशल अपील क्या होता है, एसएलपी क्या होता है, कैविएट क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, अमेंडमेंट एप्लीकेशन क्या होता है, क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन क्या होता है, इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आप रखिएगा, ये सब चीज़ों की जानकारी आप रखिएगा। यू नो व्हाट इज इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन, आर्टिकल 61 में, लेकिन इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन का मायने क्या होता है, मैं इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं जो हाई कोर्ट में आप दाखिल करते हो। सपोज कि एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर सुनवाई हो रही है, उस पिटीशन में जो निर्णय होगा उससे आपका इंटरेस्ट प्रभावित हो सकता है। लिसन व्हाट आई एम सेइंग, a petition is pending in the high court and the petition is being heard, but whatever judgment is delivered, that judgment is going to affect your interest. Listen what I am saying. तो ऐसी स्थिति में आप, अच्छा, आप तो हैं नहीं उस पिटीशन में, यू आर नो वेयर, आप पिटीशन में पार्टी नहीं है, यू आर नॉट द पार्टी इन द पिटीशन, यू आर नॉट अ पार्टी इन द पिटीशन, लेकिन उस पिटीशन में जो जजमेंट होगा दैट जजमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट योर इंटरेस्ट, लेकिन यू आर नॉट द पार्टी। अब आप पार्टी नहीं हो तो आप अपनी बात कह भी नहीं सकते कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में तभी आप अपियर हो सकते हैं जब आप उसमें पार्टी हो। तो ऐसी स्थिति में पार्टी बनने के लिए आपको इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन दाखिल करना होता है। आपको क्या करना होता है, इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन दाखिल करना पड़ता है।
और ये बताना पड़ता है कि हम इसलिए इम्प्लीडमेंट था, हमें इम्प्लीड, अब हिंदी की बात तो मैं नहीं कह सकता, आप लोग देखिएगा इंग्लिश में इम्प्लीडमेंट, IMPLEAD, IMPLEAD, इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन। तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें इम्प्लीड किया जाए, और इसलिए इम्प्लीड किया जाए कि मेरा माय इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड विद दिस पिटीशन। सो आप प्रेयर करते हो कोर्ट से कि हमें भी इम्प्लीड किया जाए। हाँ, रिट में आपने नहीं सुना क्या इम्प्लीडमेंट? नहीं सुना तो सुन लीजिए, मैं सुना तो रहा हूं। कभी कभी कोर्ट क्या करती है कि आपकी बहस सुन रही है, सुनेंगे, कभी कभी कोर्ट क्या करती है कि आपकी बहस कोर्ट सुन रही है, और कोर्ट को यह मालूम है कि जो जजमेंट मैं देने जा रहा हूं, दिस जजमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट some other persons who are not the party in this petition. The court is aware of the fact that the petition is going to be decided, and whatever judgment is being delivered, that judgment is going to affect some of the persons who are not here in this petition. तो ऐसे में कोर्ट खुद आदेश करती है कि ऐसे लोगों को आप पार्टी बनाइए जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी बनाइए। तो आप ऐसे लोगों को कहां ढूंढते फिरेंगे, कहां जाएंगे ढूंढते फिरेंगे? कटरा में और सिविल लाइंस में ढूंढो भाई, लेकिन कुछ लोग आपको मिलेंगे, तो सबको नहीं, कुछ को आपको पार्टी बनाना, कोर्ट आदेश करेगी कि इम्प्लीड कीजिए, तो कुछ को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। तो जब आप कुछ लोग पार्टी बनेंगे, तो उनको ये अधिकार हो जाएगा कि वो कोर्ट में उस हियरिंग में पार्टिसिपेट करें। अब वो बताएं कि साहब अगर इस तरह से डिसाइड होता है तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट माय इंटरेस्ट, और हमारा ये कथन है कि इसमें हमारा क्या दोष है। अपनी स्थिति यू हैव टू पुट फोर्थ योर पोजीशन देयर कि हमारी स्थिति है, तो आपका पक्ष कोर्ट सुनेगी और सुनकर फिर वो फैसला करेगी। तो ये होता है इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन, ये होता है इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन। उसी तरह से होता है अमेंडमेंट एप्लीकेशन। यू नो अमेंडमेंट एप्लीकेशन, व्हाट इज अमेंडमेंट एप्लीकेशन? आपने कोई रिट दाखिल किया है, आपने कोई रिट दाखिल किया है, अब उस रिट में आपने दाखिल कर दिया, अब उस रिट में आपको कुछ अमेंडमेंट करना है, प्रेयर में अमेंडमेंट करना है, या कोई फैक्ट्स जो आप रिट दाखिल करते समय दैट फैक्ट वाज नॉट इन योर नॉलेज, बट नाउ you want to include those facts in your petition, then what is the option? Amendment application has to be filed. इसको अमेंड किया जाए, इसमें ये संशोधन किया जाए, तो वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन हुआ। रिव्यू पिटीशन, रिव्यू एप्लीकेशन, रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन क्या होता है? कोई ऑर्डर कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, आपको ये लगता है कि इस ऑर्डर में रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है, पूरी बात कोर्ट के संज्ञान में नहीं आ पाई, इस कारण से इस तरह का ऑर्डर हुआ, तो आप रिव्यू एप्लीकेशन डालते हो और कोर्ट से आप प्रेयर करते हो कि इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए। क्यों रिव्यू किया जाए? तो आप
रिव्यू पिटीशन में पॉइंट्स बताते हो, ये पॉइंट्स जो हैं, ये तथ्य जो हैं, ये कोर्ट के संज्ञान में नहीं आ पाए, इसलिए कोर्ट से हमारा प्रेयर है कि इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए ऑर्डर को रिव्यू किया जाए। तो रिव्यू पिटीशन दाखिल होता है। फिर है क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन, हम दाखिल करते हैं कोर्ट में क्लैरिफिकेशन। कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, अब भाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया, दैट ऑर्डर हैज टू बी कंप्लाइड विथ, बिकॉज ऑर्डर इज मैंडेटरी। कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है? मैंडेटरी होता है ना। कोर्ट के आदेश का आप पालन नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंडेटरी है, क्योंकि। लेकिन मान लीजिए कोई ऑर्डर ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका, ये कैसे इसका कंप्लायंस होगा। कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, लेकिन जिसको कंप्लाई करना है उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसका कंप्लायंस कैसे करें, हाउ टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में आप क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन डालते हो। क्या डालते हो? क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन। और कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि आपने जो ऑर्डर दिया है उसको क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि 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 हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस कैसे करें। तो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन डालते हैं। तो इस तरह के ये एप्लीकेशंस हैं जो कोर्ट में डाले जाते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लीजिए बोर्ड में पूछ दे कैविएट क्या होता है, आप सब जानते होंगे कैविएट क्या होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, राइट राइट राइट। एक्चुअली होता क्या है कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको इस बात का शक है कि इस मामले में याचिका दाखिल हो सकती है, इस मामले में याचिका दाखिल हो सकती है। तो आप पहले से कैविएट दाखिल कर देते हो कि अगर इस बिंदु पर कोई याचिका दाखिल होती है तो बिना हमें सुने हुए ये मैटर डिसाइड ना किया जाए, है ना। तो ये होता है कैविएट एप्लीकेशन। ये क्या होता है? कैविएट एप्लीकेशन। कैविएट एप्लीकेशन में कैविएट जो आप दाखिल करते हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करो, चाहे हाई कोर्ट में दाखिल करो, मायने इसका यही होता है कि आपको इस बात का शक है कि इस बिंदु पर याचिका दाखिल हो सकती है। तो आप कोर्ट से कैविएट दाखिल करते हुए प्रेयर करते हो कि अगर इस बिंदु पर कोई याचिका दाखिल होती है तो हमें भी नोटिस इशू किया जाए, हमारा पक्ष भी सुना जाए और तब जाकर कोई निर्णय दिया जाए। तो ये कैविएट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल होती है वो एसएलपी कहलाता है, स्पेशल लीव पिटीशन। हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल होती है वो सिंगल बेंच में है तो रिट है, डिवीजन बेंच में गया तो स्पेशल अपील होता है। स्पेशल अपील सिंगल बेंच के ऑर्डर के विरुद्ध जो हम याचिका दाखिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल अपील। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे ये अपेक्षा की जाती है। पहले तो जुडिशियरी में अनुभव मांगता था, 3 साल का आपके पास प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए पहले। अब तो शायद, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन पहले ये था कि 4 साल 5 साल या 6-7 साल का अनुभव पहले मांगता था। मालूम है कि नहीं, यूपी में मांगता था आपके पास यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस, द प्रैक्टिस ऑफ 6-7 साल का प्रैक्टिस होना। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया। उसमें यही होता था कि आपको प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस की जानकारी है तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो इन सब चीज़ों की जानकारी, बेसिक कंसेप्ट जो है वो जुडिशियरी का, उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ
कि इंटरव्यू बोर्ड में आपकी पर्सनालिटी की टेस्ट होती है, पर्सनालिटी आपका देखा जाता है, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। पर्सनालिटी का मतलब हुआ कि कैसे आप अपीयर करते हो, कैसे आप, है ना, कितना वेल ड्रेस्ड होकर, कितना स्मार्टली, कितना कॉन्फिडेंटली, कितना कन्वीनियंटली आप प्रवेश करते हो, आप बैठते हो, आप जवाब देते हो, कितना पेशेंस से आप सुनते हो, उसके बाद कितना कॉन्फिडेंटली आप जवाब देते हो। ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी टेस्ट करती हैं। तो इंटरव्यू का दूसरा नाम पर्सनालिटी टेस्ट है। इन इंटरव्यू योर पर्सनालिटी इज गोइंग टू बी जज्ड। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और बाकी तो आपको इंटरव्यू के संदर्भ में जो बाकी जानकारी होगी वो मनोज सर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास आप लीजिएगा विद्यार्थियों को शुरुआत में, कि क्या कहाँ कैसे होता है। तो हमने एक आपको रूपरेखा रखी। दैट्स ऑल, है ना। आप सभी बिहार जे के लिए हैं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।